Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Nutrition in Plants. All organisms need energy for their movements and activities. The source of energy for organism is food. Food is utilized by the body to get energy. The process of intake of food and its utilization by the body of an organism is known as nutrition. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are different components of food. These are called nutrients of our food. The body needs food to grow, to repair damaged tissues, to derive energy, to carry out life-sustaining processes such as reproduction, excretion, etc. आप सभी को पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर किसी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं, बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। एंड हम जो खाना खाते हैं उसमें डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो दीज आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपके फूड में पाए जाते हैं। फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, डैमेज्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है, राइट, और टू डिराइव एनर्जी, और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन, सब में फूड हमें हेल्प करता है, राइट। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मेजर modes of nutrition: A, autotrophic nutrition, and B, heterotrophic nutrition. Plants are living organisms, they also need nutrition. Okay, तो basically आपके two types of nutrition है। सबसे पहला है आपका autotrophic nutrition. The word autotrophic is derived from the Greek word autos, meaning self, and tropy means nutrition. So autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which an organism prepares its own food from simple substances. Such organisms are called autotrophs. Autotrophic nutrition is found in plants. Plants have a green colored pigment called chlorophyll, which helps them to prepare carbohydrate from water and carbon dioxide in the presence of sunlight. Autotrophic nutrition का मतलब क्या है? देखिए, वो organisms जो अपना खाना खुद से बनाते हैं हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि आपके हैं ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, आपको पता है प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल, जो उनको फूड खाना बनाने में हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। नंबर 2 इज heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms take nutrition from or depend upon other organisms is called heterotrophic nutrition. Heteros means other. The organism which feed through heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Okay. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते बल्कि अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स। एंड ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इन प्लांट्स, most of the plants are autotrophic, that is they prepare their own food. Plants do it through the process of photosynthesis, which you know that. A, requirement for photosynthesis. The raw materials required for photosynthesis are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Photosynthesis will not take place in the absence of any of these. Okay. अब फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट देखिए, ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट हो ना तो फोटोसिंथेसिस आपका नहीं हो पाएगा, राइट। ए, सनलाइट. Sunlight is an essential requirement for the process of photosynthesis. Chlorophyll, the green pigment present in leaves, absorbs sunlight and initiates photosynthesis. Of course, सभी को पता है, आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सनलाइट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, वो क्या करता है, उसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, एक्चुअली सन की लाइट को ट्रैप करता है एंड देन इट इनिशिएट्स फोटोसिंथेसिस, राइट। B, chlorophyll. Plants have green color because of the presence of chlorophyll in them. Chlorophyll absorbs solar energy, which is converted into chemical energy through the process of photosynthesis. You might have seen leaves of red, brown, yellow, or patches of colors. These color leaves also do photosynthesis from the hidden chlorophyll in such leaves. क्लोरोफिल के बारे में जैसे आपको मैंने बताया अभी पहले कि ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देन इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, वैसे ना बहुत सारी लीव्स भी और भी होती है जिनका कलर होता है रेड, ब्राउन, येलो, या कुछ पैचेस होते हैं कलर्स के, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि जो क्लोरोफिल इनमें भी प्रेजेंट होता है बट वो हिडन होता है, राइट। सी, कार्बन डाइऑक्साइड. The main raw material used by plants in the synthesis of carbohydrate or glucose is carbon dioxide. Carbon dioxide present in the atmosphere is taken in by plants through the stomata in their leaves.
Thereafter, on reacting with water in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide get converted into carbohydrate. Okay. Carbon dioxide, which is the main raw material for the photosynthesis. Plants स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, देन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, राइट. डी, वाटर. Water is another raw material required for the synthesis of carbohydrates by plants. Water is absorbed by roots from soil. It is transported to the leaves through small pipes, tubes in plants. Water भी आपका जो है एक raw material है, वो उसका भी equal importance है in the process of photosynthesis, right? चलिए activity देखते हैं. Activity 1. Aim to prove that only green plants can photosynthesize. को ये प्रूव करना है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं, ग्रीन लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ लीफ विथ 2 कलर्स, बीकर स्टैंड, वाटर, टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल, आयोडीन सोल्यूशन. ओके. सो दीज आर द मटेरियल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होगी. चलिए देखते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर. नंबर 1, प्लेस अ बीकर अबाउट 3/4 full of water on a stand and boil the water. Place the leaf in this water for about 2 minutes. 2. Take the leaf out and put it in a test tube with 3/4 alcohol. Place this test tube in very hot water for about 10 minutes. As alcohol warms up, it will remove chlorophyll from the leaf and make it almost colorless. 3. After about 10 minutes, remove the leaf and dip it in warm water briefly to soften the leaf. Number 4. Now place the leaf on a white tile and put 3 to 4 drops of iodine solution in it. 5. You will see that only the green part of the leaf turns bluish black while the white part does not. This shows that a starch is present only in the green part of the leaf, so only green leaves can photosynthesize and make food. Okay. आपको देखिए एक बीकर लेना है जिसमें 3/4 full of water हो और उसको प्लेस करना है एक स्टैंड पे, वाटर को बॉईल करना है. लीफ को वाटर में रखना है कम से कम 2 मिनट के लिए, फिर लीफ को निकालना है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है विद 3/4 अल्कोहल, राइट. फिर इस टेस्ट ट्यूब को हमने बहुत ही हॉट वाटर में रखना है 10 मिनट के लिए. अल्कोहल वार्म अप होगा तो अल्कोहल एक्चुअली क्या करता है, क्लोरोफिल को वो डिसॉल्व करेगा, सारा मतलब रिमूव हो जाएगा उसमें से और वो ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगी. फिर 10 मिनट्स के बाद आपने लीफ को रिमूव करना है, उसको वार्म वाटर में डालना है जिससे कि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए. फिर आपने लीफ को रखना है व्हाइट टाइल में, उसे 3 से 4 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के आपने डालना है, राइट. एंड आप देखेंगे जो ग्रीन पार्ट होगा लीफ का वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, यानी ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जबकि जो उसमें जो वाइट पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा. तो ये क्या शो करता है कि जो स्टार्च है वो सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट में लीफ के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, वो फोटोसिंथेसाइज करती हैं, खाना बनाते हैं, राइट. फोटोसिंथेसिस. The process of synthesis of food or glucose by green plants from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis. The process of photosynthesis can be represented as follows. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives starch plus oxygen. Photosynthesis, I'm sure आप इस term से पहले से ही familiar है. Process है synthesis of food या glucose का green plants के द्वारा from carbon dioxide and water. क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, राइट. एंड दिस इज द इक्वेशन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये बनाते हैं स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, राइट. द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis is a 2-stage process. The first stage is light dependent, hence it is called the light reaction. Chlorophyll helps to trap light energy to make energy carrying particles that are used in the second stage. आपका जो photosynthesis का process है ये 2 stage process होता है. पहला stage होता है light dependent और इसीलिए इसे कहते हैं light reaction. Chlorophyll का काम होता है कि वो light energy को trap करता है. As I already told you, to make energy carrying particle जो कि आपके second stage में use होते हैं, right? चलिए activity 2 देखते हैं. What is the aim? Aim to know if light is necessary for photosynthesis. Okay. अब हमें check करना है कि क्या light photosynthesis के लिए necessary है या नहीं है. Materials required: green plants, black paper, scissors, clip. Okay. Now check out the procedure. Number 1, hide a part of a leaf using stripes of black paper. Number 2, de-starch the plant by placing in a dark room for 3 days.
3. Pick a leaf from the de-starch plant and test it for starch to check whether it is fully starch free. 4. Now place the plant in strong sunlight for at least 6 hours. 5. Pick the leaf covered by the stripe of black paper, remove the stripe and test the left leaf for starch. 6. You will see that the covered portion remains light brown while the rest of the leaf turns blue black. So it shows that light is required for photosynthesis. Okay. आपको क्या करना है, एक लीफ है राइट और उसका पार्ट, कुछ पार्ट जैसे एक ब्लैक स्ट्राइप्स है उसको हाइड कर देना. जैसे आपने इतना पार्ट जो है इसको हाइड कर दिया राइट, केयरफुली एक ब्लैक पेपर से आप इसको हाइड कर देंगे राइट. फिर आपने प्लांट को डिस्टार्च करना है. डिस्टार्च कैसे करेंगे, देखिए प्लांट्स खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, आप उसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दीजिए, तो जितना भी इसने खाना बनाया होगा वो यूज़ कर लेगा बिकॉज देयर इज नो सनलाइट राइट, तो डिस्टार्च हो जाएगा. फिर आपने एक लीफ प्लग करनी है, उस डिस्टार्च प्लांट को टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट कि ये फुली स्टार्च फ्री हुआ है या नहीं. अब अपने प्लांट को रखना है सनलाइट में, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में कम से कम 6 घंटे के लिए. फिर आपने उस लीफ को निकालना है जिसको आपने कवर किया था, स्ट्राइप को आप रिमूव करेंगे. फिर स्टार्च के लिए आपने टेस्ट करना है जैसे आपने पिछली एक्टिविटी में किया था. फिर आप देखेंगे जो कवर्ड पोर्शन होगा ना, जब आप उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो जो कवर्ड पोर्शन होगा आपका ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ये भी आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ये पार्ट भी आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, बट ये जो पोर्शन था जिसको कवर करके रखा गया था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा. तो ये क्या शो करता है कि जो लाइट है यानी कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी. अब क्योंकि ये कवर्ड था तो इसको सनलाइट नहीं मिली राइट, तो फिर ये कैसे खाना बनाता. The second stage is light independent, hence is called the dark reaction. Okay, fourth stage जो हमने बात की थी वो light dependent थी, right? और जो second stage है वो light independent है, इसीलिए इसे ये आपका इसको dark reaction कहते हैं. In this stage, the products of the light reaction are used to form carbohydrates, starch. The dark reaction can also occur in the dark, but only if the energy carriers from the light process are present. अब इस स्टेज पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे लाइट रिएक्शन के उनको यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए राइट. तो जो डार्क रिएक्शन है वो आपकी डार्क में भी होती है, बट ओनली अगर जो ग्रीन आपके जो एनर्जी कैरियर्स है ना लाइट प्रोसेस के वो प्रेजेंट है तभी राइट. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, chlorophyll. The parts of a plant which contains chlorophyll are the site of photosynthesis. Chlorophyll is chiefly present in leaves and in some quantity in young stems. So these parts are the site of photosynthesis. Leaves are also called the food factories of the plants. Chlorophyll is present inside chloroplast. These chloroplasts are scattered throughout the leaf cells. प्लांट के जो पार्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, एक्चुअली ये साइट है फोटोसिंथेसिस के राइट. क्लोरोफिल आपका लीव्स में प्रेजेंट होता है ओके और कुछ जो यंग स्टेम्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं ना उनमें भी. तो ये आपके पार्ट्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. एंड आपको पता है अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लीस्ट फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स के क्योंकि वही खाना बनाते हैं. तो क्लोरोफिल आपकी होता है इज प्रेजेंट वेयर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये थ्रू आउट द लीफ सेल आपके स्कैटर्ड होते हैं राइट. Stomata. Leaves have tiny pores called stomata on their surface. Each stoma, singular, is guarded by 2 guard cells. Stomata allow carbon dioxide to enter the leaves and reach up to the chloroplast so that it could be used in the photosynthesis. The oxygen produced during the process also escapes through stomata. Stomata आपको पता है लीफ के अंडर साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं राइट, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. तो हर स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोमेटा, वो उनको गार्ड सेल से गार्डेड होते हैं. स्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करती है कि वो लीव्स में एंटर करें ओके क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचें ताकि इस फोटोसिंथेसिस में इसको यूज़ किया जाता है ओके. और फिर जो प्रोसेस में ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस होती है वो भी आपकी एस्केप करती है स्टोमेटा के थ्रू राइट. यानी कि जो स्टोमेटा है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओके. अब फोटोसिंथेसिस आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? Photosynthesis is a very important process for the survival of plants and all organisms on the earth because number 1, photosynthesis produces food for plants. These plants in turn serve as food for other organisms like animals and human beings. Number 2, photosynthesis helps to maintain the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Number 3, photosynthesis provides oxygen for breathing of all living organisms. अब आप सोचेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं राइट, अपने लिए तो बनाते हैं, साथ ही साथ पूरे इस इंटायर वर्ल्ड के लिए वो खाना बनाते हैं
क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग से ये आप पे डायरेक्ट, ये प्लांट्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस होता है तो जो बैलेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेंटेन रहता है, राइट। और फोटोसिंथेसिस होता है तभी हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, विच इज़ very important for the survival of all living organisms. Okay? Note, the end product of photosynthesis is called carbohydrate or glucose. It is converted into another carbohydrate, starch, for storage. Starch is stored in different parts of the plant, example in the stem, potato. अब फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ग्लूकोज। फिर जो ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि स्टार्च में स्टोरेज के लिए। स्टार्च जो है फिर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में आपके स्टोर्ड होता है, मतलब लीव्स में, आपके उसके स्टेम में या रूट्स में, राइट। जैसे कि आपका पोटैटो, पोटैटो इज व्हाट, पोटैटो आपका स्टेम है, राइट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। We have just learned that plants synthesize carbohydrates by photosynthesis. Carbohydrates are made of carbon and hydrogen. But what about other nutrients like proteins and fats? For protein, plants need nitrogen. The nitrogen present in the air cannot be used as such by plants. Nitrogen is absorbed by the plants in the following ways. देखिए प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं, ये भी आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस से। कार्बोहाइड्रेट्स आपके बने होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या, जैसे कि आपका प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं। तो देखिए प्रोटीन के लिए प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन वैसे आपके एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट उसको वो एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है आपके बहुत सारे तरीकों से एब्जॉर्ब होता है। Number 1, there are some bacteria present in the soil called nitrogen fixing bacteria that convert atmospheric nitrogen into usable form, which is water soluble. This can be absorbed by roots along with water. For example, rhizobium, a bacterium found in the roots of leguminous plants like peas, grams, etc. converts atmospheric nitrogen into nitrates, a useful form of nitrogen. Number 2, farmers add manures and fertilizers rich in nitrogen, potassium and other minerals to the soil. Example, urea. These substances dissolve in water and are taken by the roots to various parts of the plant for synthesis of proteins. In this way, plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can now synthesize components of food other than carbohydrates, such as proteins and fats. Fats are oils. तो देखिए आपके पास सबसे पहला क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, इनका काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स एज इट इज यूज नहीं करते, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसे यूजेबल फॉर्म में आपका कन्वर्ट करते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, फिर रूट्स ये वाटर के साथ उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो आपके रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स के। ओके, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स जनरली आपकी दालें होती हैं, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो कि नाइट्रोजन का यूजफुल फॉर्म है। दूसरा तरीका क्या होता है कि फार्मर्स जो है ना मैन्यूर्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो जो मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है यूरिया। फिर ये पानी के साथ डिजॉल्व होते हैं, फिर रूट्स इनको लेती है और उसके बाद वेरियस पार्ट्स तक ये पहुँचते हैं। इस तरह से प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो फुलफिल हो जाती है, राइट। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants that do not make their own food by photosynthesis depend on other plants for nutrition. These plants are heterotrophs. They may be or may not be green color. अच्छा देखिए, प्लांट्स ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनमें होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो ये प्लांट्स हो सकते हैं ग्रीन हो या ऐसा भी हो सकता है ग्रीन ना हो, राइट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Most of the plants are autotrophic in nature. Okay, most of the plants, not all plants, most of the plants. But there are some plants which are dependent on other plants or animals for their survival. Let us discuss a few examples of heterotrophic nutrition in plants. Okay, अब heterotrophic nutrition plants में देखिए, आपके पास सबसे पहले है parasitic plants हैं, आपके पास carnivorous plants हैं, आपके पास saprophytic plants हैं, and आपके पास symbiotic plants हैं. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में. A parasitic plant is a one which lives on another plant and draws its nutrients from it completely or partially. This type of nutrition is called parasitism.
The plant on which a parasitic plant grows is called the host plant. The parasitic plant survives on the nutrition of the host plant, and sometimes the host plant even dies from lack of nutrition. Cuscuta is a parasitic plant that grows on plants. It is yellow, tubular or wire-like, covering the complete host plant like a mesh. Cuscuta have special structures in them called haustoria. Haustoria penetrate through the host body. They suck food and water from the host. तो देखिए पैरासिटिक प्लांट आपका वो होता है जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, या तो पूरी तरह से या फिर पार्शली. तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटस. अब प्लांट जिस पे पैरासिटिक प्लांट ग्रो करता है, राइट, जहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उससे हम कहते हैं होस्ट प्लांट. पैरासिटिक प्लांट जो है होस्ट प्लांट के न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट रहता है, और कई बार जो होस्ट प्लांट होता है वो इट डाइज. क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. वो जो पैरासिटिक प्लांट है वो सारा न्यूट्रिशन सकअप कर लेता है. कसकटा की जैसे हम बात करें तो एक पैरासिटिक प्लांट है जो प्लांट पे ग्रो करता है. ये येलो कलर का होता है, इसमें वाइल्ड लाइक कवरिंग होती है जो होस्ट प्लांट को कंप्लीटली कवर कर देते हैं मैश की तरह. ओके, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हॉस्टोरिया. तो हॉस्टोरिया क्या करते हैं कि वो होस्ट बॉडी में पेनेट्रेट हो जाते हैं, फिर फूड वाटर सक करते हैं होस्ट प्लांट से. ओके, कसकटा और डॉडर हैज अ short root and a long thread-like stem. It climbs around the host stem and sends branches around neighboring stems, giving the appearance of a mass of noodles or spaghetti. Okay, कसकटा देखिए जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है किस तरह से एक मास, ये आपका मास होता है नूडल्स या स्पेगेटी की तरह नजर आता है. ओके, mistletoe has leathery green leaves and so they can make their own food, but they depend on the host for water and minerals. Okay, अब mistletoe plant जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का तो है, राइट, ग्रीन कलर का है, मतलब ये अपना खाना बना सकता है, बट ये दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, होस्ट प्लांट पे, वाटर एंड मिनरल्स के लिए सिर्फ. ओके, इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट इज एपोडेंथस. एपोडेंथस इज अ कंप्लीट पैरासाइट. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट कंप्लीटली विद इन द होस्ट प्लांट. अ स्टेम इज एब्सेंट. द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द पैरासाइट इज द फ्लावर्स दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बार्क ऑफ द होस्ट ट्री. ये एक आपका जो प्लांट है कंप्लीट पैरासाइट है. ओके, बॉडी में क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं कंप्लीटली विद इन द होस्ट प्लांट. फिर उसमें स्टेम नहीं होती, स्टेम एब्सेंट होती है. जो सिर्फ इसका जो विजिबल पार्ट होता है वो भी क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली उस प्लांट की यानी जो होस्ट ट्री है उसकी बार्क से इमर्ज होता है. राइट, नेक्स्ट कार्निवोरस प्लांट्स. सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग them. They are called carnivorous or insect eating plants. These plants have green leaves and they can synthesize their food, but they grow in waterlogged areas and swampy soil which is deficient in nitrogen. To fulfill the need of nitrogen, these plants capture and digest insects. The leaves of a pitcher plant are modified in the shape of a pitcher with the top of the leaf forming a lid. अच्छा देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कार्निवोरस प्लांट्स, या फिर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं. वैसे तो ये प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, तो फिर इन्हें ज़रूरत क्या है कि ये इंसेक्ट को मार के खा दें. एक्चुअली जिस सॉइल में ग्रो करते हैं, ज़्यादातर वाटर लॉक्ड एरियाज में या सॉम्पी एरियाज में होता है, तो वो जो सॉइल होती है वहाँ पे वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है. अब ये नाइट्रोजन अपनी इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं. राइट, जैसे कि पिक्चर प्लांट होता है. पिक्चर प्लांट दिस वन, इसकी शेप एक मटके की जैसी है और उसमें एक लिड होता है. जैसे इसमें आपका इंसेक्ट जाता है ये लिड क्लोज हो जाता है एंड देन उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है जिससे कि वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है. इसके अलावा कुछ और भी आपके कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉट, सन ड्यू, राइट, etc. As some other examples of carnivorous plants. These plants develop some special modifications to trap insects. The trap of the Venus flytrap is a highly modified leaf. On the inner surface, there are short, stiff hair called trigger hair. When an insect touches these hair enough to bend them, the two lobes of the leaf snap shut quickly. ओके, अब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें स्पेशल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे कि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सकें. जैसे कि आप वीनस फ्लाई ट्रैप को देखिए, ये हाईली मॉडिफाइड इसकी लीफ होती है, तो जैसे देखिए इसके इनर सरफेस पे आपके जैसे इंसेक्ट बैठता है एकदम से ये शट हो जाते हैं क्विकली. द स्लेंडर लीव्स ऑफ bladderworts bear a number of very small pear-shaped bladders. Insect moving past the bladder stimulate trigger hair around
its entrance. This opens a trap door and the prey is sucked in quickly. Okay. अब bladder warts की बात करते हैं. एक ही पतली पतली जो लीव्स होती है ब्लैडर वॉर्ट्स की, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्योर शेप ब्लैडर्स होते हैं. इंसेक्ट जो मूव करते रहते हैं ब्लैडर, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ट्रिगर हेयर उसके एंट्रेंस के अराउंड, राइट. फिर से ट्रैप डोर खुलता है और जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर फंस जाता है, राइट. और फिर इसे क्विकली सक कर लेते हैं. The leaves of sundew plant have many tentacles with drops of a sticky substance called mucilage at the ends. Insects get stuck in the sticky substance and become entangled. The mucilage then digests the insect. अब देखिए sundew प्लांट में देखेंगे, इसमें आपके क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स होती हैं, राइट. इस तरह से ये जो टेंटिकल्स होते हैं ड्रॉप होती है, स्टिकी सब्सटेंस होता है. तो इसमें आपकी जैसे इंसेक्ट जाते हैं वो फंस जाते हैं. ओके. और फिर जो म्यूसिलेज होता है वो क्या करता है, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, राइट. सी सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. Some plants do not have chlorophyll and appear white. These plants grow on spoiled food, decaying vegetables, fruits, pickles, bread, leather shoes, purses, clothes, wooden logs, etc. These are a group of plants called fungi. They are of different types. Some are umbrella-like structures, example mushrooms, some ball-like, example puffballs, and some paper pin-like, example rhizophus. These plants secrete digestive juices on the dead and decaying object on which they grow and absorb the nutrients. This type of nutrition is called saprophytic nutrition. Such plants are called saprophytes or saprotrophs. Fungal spores are generally found in air like dust. They keep floating. When they land on wet and warm materials, they germinate and grow. They usually grow in wet and warm season. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वाइट कलर के आपको नजर आते हैं. तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे कोई स्पॉइल्ड फूड है या डिकेइंग वेजिटेबल है, पिकल्स, ब्रेड, लेदर शूज, इन सब में, राइट. तो ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है जिन्हें हम कहते हैं फंगी, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कुछ आपके एम्ब्रेला स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जैसे मशरूम. एक्चुअली मशरूम आपका एक प्लांट है बट इट इज़ अ फंगी. ओके. कुछ बॉल जैसे होते हैं जैसे पफ बॉल्स, कुछ आपके पेपर पिन जैसे होते हैं जैसे कि राइजोबस. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं उस डेड एंड डिकेइंग मटीरियल पे जिस पे ये ग्रो करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स या फिर सेप्रोट्रॉप्स. फंगल स्पोर्स आपके जो जनरली पाए जाते हैं एयर में, इन एयर लाइक डस्ट, ये फ्लोट करते रहते हैं. तो जैसे किसी वेट या वार्म मटेरियल पे ये लैंड करते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, और ये यूजुअली वार्म और वेट सीजन में ही ग्रो करते हैं, राइट. डी, symbiotic relationship. This type of relationship is unique in which two organisms, two animals or two plants live together. This is called symbiosis, meaning living together. And the relationship is called symbiotic relationship. In this, both partners are benefited. Symbiotic relationship काफ़ी यूनिक रिलेशनशिप है. इसमें दो जो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, और वो दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं. ओके. तो ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है symbiosis or symbiotic relationship. Number 1, the lichen is one such example. It has two partners. One is a fungus that provides shelter, water and minerals. The second partner is an algae which has chlorophyll. It makes food by photosynthesis and shares with the fungus. देखिए लाइकन में क्या है, इसके दो पार्टनर्स होते हैं. एक है फंगस जो कि शेल्टर, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है, जबकि जो एल्गे होती है वो क्लोरोफिल, ग्रीन कलर की होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो फिर फूड प्रिपेयर करती है बाय फोटोसिंथेसिस एंड देन इट शेयर्स विद द फंगस. Lichen grows as grey-green patches on rocks, logs, etc. Number 2. In legume plants, pulses, beans and some trees, the fungus lives on the roots. The fungus provides water and nutrients absorbed from the soil to the plant or tree. It gets shelter and nutrition from the plant or tree. In legumes, root nodules have bacteria that provide nitrates for making protein by the plant. The plant in return gives shelter and nutrition. Leguminous plants and कुछ ट्रीज में क्या होता है कि फंगस रहते हैं रूट्स पे. तो जो फंगस है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट या ट्री को, जो कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. फिर बदले में फंगस को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट या ट्री से. इसी तरह से लिग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे हमने बात की थी, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रेट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और फिर प्लांट बदले में उसको क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, राइट. Note, in this association, both partners are benefited. In parasitic association, one partner
is benefited and the host is harmed. अच्छा, symbiosis में क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर्स को फायदा होता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जबकि जो पैरासिटिक एसोसिएशन है तो एक पार्टनर को बेनिफिट होता है यानी जो पैरासाइट है, एंड जो होस्ट है उसको नुकसान होता है, राइट. रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. Do you like potato chips, wafers? Yes, you do. When you finish a packet of chips eating them, from where do you get it again? You go to the kitchen, rack cupboard and take it. Your mother keeps the stock after purchasing from the market. Soil is rich in nutrients. All plants absorb nutrients to nourish themselves. The important nutrients absorbed by plants from soil are nitrogen, potassium and phosphorus. Some crops use some nutrients in large amount and others in less amount. After the growth of wheat crop, nitrogen gets reduced in the soil. Very little is left for the next crop plants. If plants are grown in such a soil, they will be unhealthy. To gain enough nutrients, farmers replenish it by adding manures or fertilizers, example urea. B. Planting legumes. Legumes have nitrogen fixing bacteria in their root nodules naturally. देखिए, आप जैसे आप लोगों को पोटैटो चिप्स और वेफर्स बहुत पसंद होते हैं, राइट. तो जैसे आपने एक चिप्स ख़त्म कर लिया पैकेट, आप जाते हैं वापस किचन में लेकर आते हैं, तो आपकी मदर क्या करती हैं, मदर है या फादर है, क्या करते हैं कि जैसे ही इनको उनका स्टॉक रखते रहते हैं, ख़त्म हो गया फिर से मार्केट से परचेज़ किया, उसका स्टॉक रखा. तो सॉइल आपकी क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, राइट. प्लांट्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप को नरिश करने के लिए सॉइल से. अब देखिए, अगर वो क्या होता है, प्लांट्स सारा ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर तो जो आपकी सॉइल है वो तो डेफिशिएंट हो जाएगी, है ना. फिर तो अगली क्रॉप उसमें अगर आप ग्रो करेंगे तो अगली क्रॉप के लिए तो फिर तो न्यूट्रिएंट्स बचेंगे नहीं. तो ऐसे में फार्मर्स क्या करते हैं, इसको रिप्लेनिश करने के लिए यानी रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जैसे कि यूरिया, और या तो लेग्यूम्स को प्लांट करते हैं क्योंकि लेग्यूम्स में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में, राइट. बाय दीज टू मैथड्स नाइट्रोजन इज रीस्टोर्ड एंड प्लांट्स यूटिलाइज देम. तो इन दो मैथड से नाइट्रोजन आपका रिस्टोर्ड होता है और प्लांट्स उसे यूटिलाइज करते हैं. Plants provide shelter to rhizobium and get nutrition in return. This relationship is very useful to plants and the farmer. He need not add extra fertilizers to soil. This keeps the soil fit and fertile for cultivation. तो plants देखिए वो rhizobium को shelter provide करते हैं, ओके, और बदले में उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है. तो ये रिलेशनशिप काफ़ी यूजफुल होता है प्लांट्स और फार्मर के लिए क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इससे आपकी सॉइल भी फिट रहती है और फिर ये फर्टाइल भी रहती है कल्टिवेशन के लिए, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में जो प्रेजेंट हैं ये आपको समझ आया होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.